You've got the music coming night and day. FM is ready for you in the morning or late at night. Whoa, you gotta let the music play. AIR FM stereo. AIR FM stereo. All the time on All India Radio. हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है. टुडे आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू वन ऑफ द renowned Bollywood versatile singer who has done famous hit songs like Sajna, Avija and Zinda Hu Main. Please welcome Shivani Kashyap. Shivani Kashyap, welcome to Shiraz Khan show. Thank you so much. And let's talk about your journey from where you have started. Let me start by singing a few lines of that journey. हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है. शिराज, मैंने अपनी जर्नी रेडियो से शुरुआत की थी और ऐसे की थी शुरुआत. अच्छा. You've got the music coming night and day. FM is ready for you in the morning or late at night. Whoa, you gotta let the music play. AIR FM stereo. AIR FM stereo. All the time on All India Radio. सुपर, वेरी नाइस. एक्चुअली ये हमने बहुत बार सुनते थे जब रेडियो आते थे, अब पता चला कि उसके पीछे जो आवाज़ थी वो शिवानी आपकी थी. Exactly, तो खुलासा हो गया आज. फाइनली. और शिवानी कुछ बताएं अपने फैमिली के बारे में और अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई? I am a Delhi girl completely. Of course, I live in Bombay now, and I guess it's good luck that मैं अभी दिल्ली आई हुई हूँ तो हम लोग मिल पाए. But actually, I would just say that my family is a very highly professional family. I come from a family of educationists and professionals. So my father is from the army. मेरी mother educationist हैं, वो स्कूल की प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल की. लेकिन अब वो अपने खुद के स्कूल्स जो हैं उनको रन करती हैं. माई ब्रदर्स फ्रॉम द IT वर्ल्ड, अगर आपने गो IBBO का नाम सुना हो. Correct. So he's the founder of the Go IBBO. Wow. And now he's just launched his new technology called IND Wealth. Okay. So none of them are really from music world, but I guess my mother, she's a classically trained singer, so उनकी ये dream थी that I want to see my daughter as a singer. So I think this is how it all happened, and I've done my English honors, my literature honors from Lady Shri Ram College, and I'm from Delhi Public School. Mathura Road, yes. Absolutely. So yeah, it's been a great journey, but सब कुछ दिल्ली से ही हुआ. In fact, all the hit songs that I got initially also, वो सब मुझे दिल्ली में बैठे बैठे ही मिले थे. लोगों को बॉम्बे जाना पड़ता है अपने करियर को बनाने के लिए, बट आपको दिल्ली में वो सब मिल गया. Actually. तो आपका जो करियर का स्टार्ट हुआ, पहला जो ब्रेक था और जो जिसने आपकी लाइफ चेंजेस ब्रेक जिसको बोलते हैं, वो कैसा और वो कौन सा ब्रेक था आपका? मैंने आपको ये जिंगल गा के सुनाया. इसके साथ मेरा एक प्रोफेशनल सिंगिंग करियर की शुरुआत हुई थी इस जिंगल के साथ, विद रेडियो जिंगल्स, विद TV कमर्शियल्स. बहुत सारे जैसे TV पे बहुत सारे सीरियल्स वगैरह आते थे, तो उनके टाइटल ट्रैक्स मैंने गाए हुए हैं, कंपोज भी किए हुए हैं. एक मिस इंडिया शो आया करता था TV पे उन दिनों पे. दूरदर्शन पे सुबह सवेरे का जो टाइटल ट्रैक है, दैट्स कंपोज्ड एंड संग बाय मी. I think we've completed about 100 episodes. So yeah, it's like it's been a great journey from behind the scenes to front of the scenes. So पहले I used to be in the studio like a geek. आप मुझे पहचान ना पाते because I was a college girl, and after college hours I used to do this. So I used to be in the studio making jingles, making TV commercials, producing music, totally producing, and of course singing also, hiring other singers as well. And then of course when my first album हो गई है मोहब्बत happened in 1998, जब वो रिलीज़ हुई और उसको चैनल V अवार्ड मिला और बहुत सारे अवार्ड्स मिले और वो गाना सुपर डुपर हिट हो गया. एक बार वो गा के बता दें, क्योंकि वो गाने ने तो पूरे इंडिया में धूम मचा दी थी और शिबानी को तो मतलब रातों रात ऐसे मानो कि लोगों ने सुपरस्टार मान लिया था. राइट? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट यस, ये गाना सबके लबों पर था. एब्सोल्युटली, आज भी है. हो गई
how my pop music career started in 1998 और बहुत ही I would say एक ड्रीम स्टार्ट थी, बहुत ही खूबसूरत बिगिनिंग थी फॉर माय पॉप म्यूजिक करियर. एक मिनट इस गिटार को मैं ज़रा संभाल के रखूँ क्योंकि ये मेरा सबसे अजीज चीज़ है मेरी लाइफ. ऑब्वियसली इसकी वजह से क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है गिटार. जी जी. तो क्या ऐसा होता है कि माँ ऐसा चाहती थी इसलिए आप सिंगर बन गए, या आप भी सिंगर ही बनना चाहती थी, या आपके कुछ और ड्रीम्स थे बनने के? सो आई थिंक दिल से मैं हमेशा सिंगर ही बनना चाहती थी. बट जब भी मैं बचपन में लोगों को बोलती थी दैट दे वुड आस्क मी व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आई वुड से आई वांट टू बिकम अ सिंगर. नहीं नहीं वो तो ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू डू, सिंगिंग विंगिंग तो ठीक है. सो आई यूज्ड टू बी वेरी स्कैर्ड दैट यू नो मे बी आई एम ट्रेडिंग ऑन समथिंग वेरी wrong. It's a wrong thing that I'm doing, and it was very going against the traditional those. You know. And people not take it as a profession, like if you want to be a singer, अच्छा ठीक है ये तो तुम्हारा शौक है. अब तो of course because of all these Indian Idol and all these platforms of reality shows and singers, there are so many singers now, and everyone, I mean all the people who are good, they're really rocking because now there are so many opportunities and avenues. I mean there is YouTube, there is audio streaming platforms, there's so much which is there for us. So I think पर उन दिनों में I think एक वो था ना कि नहीं, let's tread safely. डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर बनो, यू नो, या कुछ इस टाइप का बनो, या आर्मी में जाओ या पुलिस में जाओ या IAS करो, IFS करो. सो आई रियली वाज एक्चुअली थिंकिंग अलोंग दोज लाइन्स. तो मैं बहुत ही पढ़ाकू थी, स्टूडियस गर्ल, लाइक अ गीक, यू नो, वेयरिंग माय थिक स्पेक्स. हम देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर. ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर जो लाइब्रेरी आप देखोगे तो अब लाइक ओ माय गॉड, सो मेनी बुक्स. सो इट वाज, पढ़ाई का शौक भी था मुझे. मैं इनफैक्ट अपने आप को कमरे में बंद करके ना कि डोंट डिस्टर्ब मी, आई वुड जस्ट कीप रीडिंग. सो बट आई थिंक समवेयर म्यूजिक इज समथिंग विच इज ऑलवेज माई पैशन, एंड आई थिंक आई वुड ऑलवेज एडवाइज पीपल टू फॉलो देयर पैशन. अगर आप वो काम करें जो जिससे आपको मोहब्बत हो, जिससे आप प्यार से निभा सकें, आप उस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से फिर यू नो अचीव कर पाएंगे, उसमें सक्सेस अचीव कर पाएंगे. दैट्स व्हाट आई फील. बट इफ यू थिंक दैट दिस इज वर्क यार, यू नो, क्या मुसीबत है, दैट इज नेवर गोइंग टू गेट यू एनीवेयर. एब्सोल्युटली. एल्बम्स का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था और उसमें एक आपको बहुत बड़ा ब्रेक मिला, हिट सॉन्ग हुआ. उसके बाद की जर्नी कैसी रही फिर आपकी? सो एक्चुअली दोज डेज everybody wanted to become a pop star, right, because pop music was really the in thing, and you know it was the MTV generation as they call it, and the pop culture in India was on a rise. Right. So everybody wanted to wear good clothes, look good, be on stage, you know, become a rapper, or so that 90s was a very glorious time for indie music, right, or indie pop music. एंड आई थिंक आप हमने कितने सारे इंडी पॉप स्टार्स देखे हैं, जैसे अलीशा चिनाई, बाबा सहगल, यू नो, ही इज अ पायनियर ऑफ रैप इन इंडिया. आई मीन आइस बेबी, कांट फॉरगेट दैट. एंड अलीशा चिनाई's pop songs and the way she used to dress up in her videos, so we used to follow that, you know, Shweta Shetty, Anaida, Mehnaz. There were so many of these artists who necessarily were not very good playback, not, I won't say good, but not meant to be playback singers, but they were personalities. Absolutely. They were pop personalities, and we used to all follow them. Just like a mentor in this industry for this particular field for pop industry. Yeah. So then when I also got into it, I was totally, I think I always dreamt of this only, and really your dreams can come true if you live your dream each day and you keep manifesting that मुझे यही करना है. So yes, after pop music मैंने actually कभी playback music के बारे में सोचा ही नहीं था, बॉलीवुड के बारे में नहीं सोचा था, because it was like a very far away dream. Because उन दिनों में अगर आप देखते थे कि लेट 90s में भी जो लंबे लंबे गाने होते थे बॉलीवुड के, और हाई पिच्ड वॉइसेस होती थी, अलका याग्निक जैसी, जिनकी रेंज भी इतनी. सो आई यूज्ड टू फील दैट ओ माय गॉश, आई डोंट थिंक आई कैन सिंग लाइक दिस. माय वॉइस इज टू हस्की, टू डिफरेंट, एंड आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ जैज इंटोनेशन इन माय वोकल्स, बिकॉज यू नो आई बीन brought up on that kind of music, jazz, classical, rock and roll. You know, my college years, I had a rock band. Oh. I used to be a part of Blitzkrieg, the band which had KK, it had me, it had, you know, it had some amazing people like Julius Packiam, जो आज की डेट में यशराज movies के जितने भी background scores है वो बनाते हैं. Right. So we were all friends and we used to be a part of this amazing band, and we used to sing, you know, like the songs of the rock classics and stuff. तो वो हमारी जनरेशन, आई वॉज ब्रॉट अप ऑन दैट काइंड ऑफ म्यूजिक. सो आई वॉज लाइक प्लेबैक म्यूजिक, ना, इट्स नॉट फॉर मी. बट आई थिंक जैसे मैंने, यू नो, आई केप्ट डिस्कवरिंग माई सेल्फ एंड माई म्यूजिकलिटी.
एक दिन आई रिमेंबर मेरे को कवाली पता ही नहीं होती थी कि व्हाट आर कवालीज, आई यूज्ड टू नो व्हाट आर कवालीज, बट आई डिडंट, मुझे कुछ भी इल्म नहीं था सूफी म्यूजिक के बारे में. या गज़ल्स इज समथिंग विच आई हैव बीन टॉट इन माय क्लासिकल म्यूजिक रेजीम. माय मदर इज़ अ वेरी गुड गज़ल सिंगर, तो गज़लें मैंने बहुत गाई हुई हैं एज अ चाइल्ड ऑल्सो. इनफैक्ट जब मेरा पहला म्यूज़िक कॉम्पिटिशन था जिसमें मैं फर्स्ट आई थी, जब जगजीत सिंह जी वॉज द जज, आई रिमेंबर आई वॉज 9 years old दैट टाइम, तो मैंने दिल चीज़ क्या है गाई थी एंड आई केम फर्स्ट एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉश, आई कांट बिलीव दिस, ही इज़ गिवन मी द फर्स्ट प्राइज एंड ही सेड बेटे तुम सिंगर ही बनना. So there were too many signs and symbols along the way which said कि yes, this is what I will pursue and this is what I will become. So again, as I said, playback music was a faraway dream. But जैसी मेरी म्यूजिकलिटी डेवलप होती रही, एक दिन मेरे एक दोस्त हैं मुराद अली जो मुजफ्फर अली जी के बेटे हैं, एंड आई रिमेंबर क्योंकि मैंने दिल चीज़ क्या है बचपन में गाई थी क्योंकि वो मेरी फेवरेट फिल्म थी एज अ चाइल्ड, उमराव जान, एंड आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ रेखा. देख सकते हैं हम. वो हमारे पास ही है. Huge fan of Asha Bhosle ji, and I've had the great fortune of meeting her as well. And I think Asha Bhosle ji is one of the, I think the most amazing singers as this world has. इतनी versatile है वो, गज़ल से लेके पॉप से लेके आइटम सॉन्ग्स और सैड सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, सब कुछ इतनी अमेजिंग तरीके से she sings everything with such aplomb. Correct. I don't think शायद ही कोई ऐसी सिंगर होगी in the world who can actually handle so many genres. Right. You know, at a time. So, तो ghazals were already, you know, deeply entrenched in me, and I was like, I really want to meet the filmmaker. Yeah, he's made such a beautiful film. So one day it happened, you know. तो वो कौन सा पहला ब्रेक जो प्लेबैक में आपको मौका मिला, कैसे मिला और वो कौन सा सॉन्ग था, तो वो भी पता लग जाए. So मौका ऐसा था कि मैं आपको इसके पीछे की जो बैक स्टोरी बता रही थी कि मुराद अली जो मेरे दोस्त बने, तो वो बहुत ही मतलब रूहानियत में है, एंड ही इज़ इनटू यू नो पोइट्री एंड शायरी एंड एवरीथिंग. सो आई वाज लाइक क्या बोर करता रहता है यार, मैं बहुत बोर हूँ. बट स्लोली आई यूज्ड टू जस्ट लिसन टू हिम एंड इट जस्ट केप्ट गेटिंग अब्सॉर्ब्ड इनटू माय सिस्टम. एंड वन डे ही सेड आई एम टेकिंग यू समवेयर. ही टुक मी टू द निज़ामुद्दीन दरगाह ऑन अ थर्सडे, जहाँ पे जो कवाल्स हैं वो बिल्कुल बिना किसी माइक के बैठ के परफॉर्म करते हैं. Correct. So something changed within me that day, and I said, "Oh my gosh, I have to understand, study, and get into Sufi music." तो उसके बाद मैंने एक एल्बम बनाई नगमगी, which was a combination of कवाली, rock and शायरी. मुराद ने शायरी. तो उस एल्बम का जो मैं उसका एल्बम का वीडियो बना वो बहुत अच्छा. दैट एल्बम डिड really really well. Then I made my next album, and I made a song called सजना अबीजा. And सजना अबीजा भी बहुत ही एक सूफियाना सोलफुल काइंड ऑफ अ सॉन्ग है. तो आई वॉज डेफिनेटली गोइंग टू पुट इट एज अ पार्ट ऑफ माई एल्बम, बिकॉज एल्बम्स का दौर था उन दिनों, राइट, अर्ली 2000 की बात है ये. और अभी गाना रीमेक होने जा रहा है, अच्छा, बहुत ही बड़ी फिल्म के लिए, तो वो मैं भी आपको नहीं बता सकती. इट्स बीन अ ग्रेट अचीवमेंट इन फैक्ट. थैंक यू सो मच. नहीं लगता तेरे बिना नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा सजना अभी जा सजना सजना अभी जा सजना नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा सजना अभी जा सजना अभी जा. सोलफुल, ट्रस्ट मी. Thank you मतलब so दिल को छूने वाली आवाज़ और जो इसके अंदर लिरिक्स का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत खूबसूरत है. Thank you. और क्योंकि वाकई में शायद आपने उस वक्त में सूफ़ी को और शायरी को और उर्दू पोइट्री को समझना शुरू कर दिया था, वो आपके अंदर उतर चुकी थी, तभी Yeah. आपने इतना सोलफुल गाना गाया.
थैंक यू सो मच। और फिर तो आपकी जर्नी बहुत अच्छे पीक पे रही, लोगों ने आपको जानना शुरू हो गया, आपका बॉलीवुड में नाम बन गया कि शिवानी कश्यप, शी वन ऑफ द रिनाउंड प्लेबैक सिंगर। फिर आपके करियर ने कैसा आपको बूम किया, आगे कैसा बढ़ा? उसके बाद तो मतलब मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि इट वाज क्रेजी, यू नो, लाइक वन फिल्म आफ्टर द अदर फिल्म, बिकॉज आई वाज नॉट रेडी टू डू फिल्म्स एक्चुअली। Correct. बट एकदम से एक नया ट्रेंड स्टार्ट, आई थिंक हमने ही स्टार्ट किया इस गाने के साथ और इस फिल्म के साथ, बिकॉज इस गाने में एक हमने इफेक्ट भी यूज़ किया था, वोकोडो, विच वाज यूज्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया। शिबानी, जो अब आपके लेटेस्ट जो ट्रैक हैं, अभी कुछ दो आपके हाल ही में बहुत मिलियन व्यूज़ में आपके गाने हिट हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ बात करते हैं, क्योंकि आपका लेटेस्ट जो आपके गाने सब ने पसंद किया है, तो वो आप हमें बता दें उसके बारे में, और दो गाने हम उसके लाइन सुनेंगे भी। सो अभी लॉकडाउन के टाइम पे, सेकेंड लॉकडाउन के टाइम पे एक गाना रिलीज़ हुआ था, जोगिया, जो मैंने कंपोज भी किया है अलॉन्ग विद वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन मनपाल सिंह जी, जिन्होंने उसको लिखा भी है और मेरे साथ बैठ के हम दोनों ने को क्रिएट किया इस गाने को। मनपाल सिंह और काकू कलंदर, ये वहीं के हैं, पंजाब के हैं, एंड दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड। सो जोगिया फीचर्ड धीरज ऊपर, who's a very popular television actor, and उनके वजह से आई थिंक गाने को एक बहुत अच्छा पुश मिला, एंड his fans have loved the song. गाने की आवाज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ऐसी जी, बात मैं नहीं भी, मेरा भी कैमियो अपीयरेंस है। हाँ, मैंने देखा था वो, उसमें आप भी फीचर जी, खुद जी, भी जी, हैं, जी, तो I'm वो there. जोगिया गाने का एक बार गा के Definitely a few lines of that, yes, yes. absolutely. कड के ना जावी दिलों, छड़ के ना जावी वे, कड के ना जावी दिलों, छड़ के ना जावी, तेनू दिल ने विच वसा लिया, जोगिया, हाय जोगिया वे मुंदरा वालिया, मैं दिल तेरे नाल ला लिया, जोगिया, हाय जोगिया, हाय कड के ना जावी दिलों, छड़ के ना जावी वे, कड के ना जावी दिलों, छड़ के ना जावी, तेनू दिल दे विच वसा लिया, जोगिया, हाय। वेरी नाइस। थैंक यू। मतलब आपकी आवाज़ के बारे में तो मुझे अब ज़्यादा मैं तारीफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। आप माशाल्लाह बहुत सुरीली हैं, Thank you बहुत so much. अच्छा गाती हैं। व्हाट इज़ सक्सेस फॉर यू? फीलिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट, सनराइज और सनसेट? sunrise. व्हाट डू यू लव द मोस्ट? I love the most. I love life. That's the right question. व्हाट इज़ द Right answer. फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट समवन व्हेन यू मीट देम? The body language. व्हाट कॉम्प्लीमेंट डज पीपल गिव यू द मोस्ट? Everyone says that I'm okay. मुझे दो compliments हमेशा मिलते हैं कि यार you still look like that what I saw you 10 years back. ये तो You मैं भी still कहने look वाला very था। young. You always look young. अच्छा, then the second compliment is that you have very positive aura about you. हैव यू एवर स्टॉलन एनीथिंग? Yeah, hearts. वाओ। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? Not really. No, no. हैव यू एवर स्लेप्ट समवन इन पब्लिक एंड व्हाई? In public? Yeah. No, I'm not. How long you can hold your breath? 45 seconds. 45 seconds. Yeah. Nice. Dark chocolate or milk chocolate? Dark chocolate. Are women complicated? Yes. That's what makes them women. Honest answer. Yeah. Yes. Texting or talking? Talking any day. यार ये texting कर करके ना मेरी ये वाली जो finger है ना, it's gone. I think मुझे कुछ arthritis type का होने वाला है. It's in pain. Do you believe in destiny? Yes, absolutely. If you could secretly seek into one person's life, who would be? So I really like Hrithik Roshan, so I'd like to check out what is he up to all the time. Which color of wardrobe you have? Color. I think a red. The red color is maximum in my wardrobe. What is your nickname? Sonu. Sonu. Yeah. Okay. If you are not a singer, what would you be? I would be like an interior decorator. And we can see. Yeah. Your favorite place to eat? Okay, so Tonino, it's an Italian lovely restaurant on MG Road in Delhi. So that's one of my favorite places to eat.
Also, the ambience is very pretty, very beautiful. Okay. And in Mumbai, as I said, I love South Indian food. So Tanjore is my all-time favorite. Okay. Which celebrity annoy you the most? Rakhi Sawant. Okay. If you go for adventure trip, with whom you take along and why? I think I'd like to go with my gang of girls, and be able to do adventure without taking the help of, you know how it is, like a boy's help. Be strong within ourselves and be self-sufficient. Okay. What would you like to say about our Shiraz Khan show? Oh, it's fun, and I think it's there is a 3-camera setup here, which normally there isn't here. Maybe only on television, TV studio shows, but this is a greatly produced show. So I'm looking forward to seeing my episode on this. Thank you so much. Hope you like the story and journey of Shibani Kashyap, and if you really like and motivate with this story, please do like and share this video, and for those who did not subscribe our channel, please do that.